Good morning, students. Welcome back to the accountancy classes. We have already done our chapter, that is the basis of accounting, right? In this topic we have covered that we have to do accounting on two main bases, that is, one is the cash basis and another one is the accrual basis. So today we will do practical questions from this topic, that is the basis of accounting. In this topic we will do that how to calculate the value on such basis. So before starting that, let us revise कि हमारे पास इन बेसिस का मतलब क्या था. कैश बेसिस का मतलब था कि हम अपनी बुक्स में सिर्फ वही आइटम्स को रिकॉर्ड करेंगे विच आर आइदर रिसीव्ड इन कैश और पेड इन कैश. ऑल दोज आइटम्स विच आर स्टिल लेफ्ट टू बी रिसीव्ड or which are still left to be paid or outstanding will not be recorded in cash basis, right? But in accrual basis of accounting we will record every transaction which will be either received or receivable, means which is still to be received, as well as we will also include all those items which are paid or still to be paid, मतलब outstanding भी add हो जाता है. So we will do the practical questions on the basis of a cash and accrual basis of accounting. So when we are doing this question, we have a very first situation, and I do think that these questions are the practical question from this theoretical part, and only we have two questions from the theory which is in numerical form. So obviously if there are only two questions then its value increases, means these are important questions. So let's focus on this question. We have a situation. Question number 1, we have a situation. There is a person which is Shyam. We have a person Shyam. Shyam has total revenue during the year of rupees 4,70,000. From this revenue he still has credit sale of rupees 1,30,000, right? Then during the year he has some expenses and the total expenses equals to rupees 2,50,000. From this some amount is still outstanding, that is rupees 30,000. So we have to calculate the total income of Shyam on the basis of cash basis of accounting as well as accrual basis of accounting. So as per the question we are given that Shyam के पास टोटल रेवेन्यू है 4,70,000 की, और उसे 4,70,000 में से उसकी कुछ अमाउंट जो है क्रेडिट पे, मतलब कि उसका पैसा अभी आना बाकी है. तो हम इसमें से कैश में देख लेंगे कि कैश में कितना पैसा आया. तो कैश का पैसा कैसे निकलेगा? टोटल रेवेन्यू माइनस क्रेडिट सेल, that is 4,70,000 minus 1,30,000. We are left with 3,40,000, जो कि हमारे पास क्या बच गई? कैश से. फिर इसी इनकम में से कुछ हमारे पास क्या हुई है? खर्चे हुए. तो खर्चे हमारे पास एक्सपेंसेस 2,50,000 है, और इसी एक्सपेंसेस में से अभी स्टिल कुछ पैसा
कुछ खर्चा करना बाकी है, मतलब कुछ खर्चे के पैसे देने बाकी हैं। तो कैश में हमने सिर्फ 2,20,000 रुपीज़ दिए, 2,20,000। तो नेट हमारे पास कैश बेसिस पे 1,20,000 जो है वो हमारे पास इनकम आ गई है शाम की, राइट। सो इफ वी कैलकुलेट दिस सेम क्वेश्चन इन एक्रूअल basis of accounting, on accrual basis we have total revenue, टोटल रेवेन्यू हमारे पास कितना है, दैट इज इक्वल टू रुपीज 4,70,000, राइट। एक्रूअल मीन्स जो पैसा अभी आना बाकी भी है वो भी इंक्लूडेड है, राइट। तो इसमें क्या है 4,70,000 और 1,30,000 अभी इसी में इंक्लूडेड है। तो रेवेन्यू हमारे पास कितना है 4,70,000, डन। फिर हमारे पास एक्सपेंसेस कितने हैं, जिसमें हमारे आउटस्टैंडिंग इंक्लूडेड होंगे, क्योंकि हम जब एक्रूअल बेसिस पे काम करते हैं तो हम वो आइटम भी लेते हैं जो हमारी अभी भी स्टिल आउटस्टैंडिंग है। तो अगर मतलब कि ये इंक्लूडेड उसमें माना जाएगा। तो ये एक्सपेंसेस टोटल है, टोटल में से इंक्लूडेड अमाउंट दे रखी है तो हम टोटल लिख देंगे। तो हमारे पास जो नेट अमाउंट बच जाएगी वो क्या हो जाएगी, एक्रूअल बेसिस पे हमारे पास इसकी नेट इनकम निकल जाएगी, राइट। तो डिफरेंस क्या है इन दोनों में कि जब हम कैश बेसिस में करेंगे तो जो भी क्रेडिट वाला सामान है, क्रेडिट में अभी पे करना बाकी है या अमाउंट लेनी बाकी है, तो वो हम इसमें से डिडक्ट कर देंगे और हम नेट अमाउंट कैलकुलेट करेंगे। तो नाउ वी विल डू अनदर क्वेश्चन, दिस वन इज अ सिंपल वन, एंड नाउ वी विल डू अनदर क्वेश्चन। तो बच्चों ये क्वेश्चन है इजी, लेकिन समहाउ थोड़ी सी सिचुएशन गड़बड़ हो गई ना तो क्वेश्चन खराब हो जाएगा। थोड़ा सा भी प्रॉब्लम आ गया आपके क्वेश्चन में तो यू विल लूज मार्क्स। तो ये क्वेश्चन है आपका बच्चों पेपर में 4 मार्क्स तक आ सकता है, 4 मार्क्स या 3 मार्क्स में आपके जो क्वेश्चंस आते हैं पेपर में उनमें ये क्वेश्चंस डेफिनेटली आ सकते हैं। इट हैज़ अ हाई स्कोप, these question has high scope। तो एक और क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 के अकॉर्डिंग बच्चों हमारे पास एक पर्सन है विनोद, हम बुक्स बना रहे हैं विनोद की। तो विनोद की बुक्स के अकॉर्डिंग I'm having the wet blackboard, that is whiteboard। So इस सिचुएशन के अकॉर्डिंग विनोद के पास हमारे पास टोटल सेल्स बता रखी हैं। सेल्स उसकी है ₹7,40,000। देन इसमें से उसको ₹5,60,000 जो है टोटल सेल्स में से 5,60,000 जो है वो उसे कैश में मिल चुके हैं, मतलब कैश सेल उसकी 5,60,000। फिर उन्होंने बताया है कि उसने एक्सपेंसेस पे कर रखे हैं, दैट इज ₹3,80,000, जिनमें से ₹30,000 जो हैं वो नेक्स्ट ईयर के हैं एंड ₹10,000 जो है वो अभी भी आउटस्टैंडिंग है, वो अभी भी आउटस्टैंडिंग है। तो अब हमें कैलकुलेट करना है वो अमाउंट, टोटल इनकम ऑन कैश बेसिस एज वेल एज एक्रूअल बेसिस। ठीक है जी, तो कैश बेसिस से क्वेश्चन करते हैं।
कैश बेसिस में हमें सीधा बता रखा है कैश सेल, तो कैश सेल्स हमें दे रखी हैं, दैट इज ₹5,60,000, राइट। और हम निकालेंगे एक्सपेंसेस, एंड एक्सपेंसेस हमारे पास 3,80,000 है, जिसमें हमारे 30,000 जो है वो नेक्स्ट ईयर के हैं, तो उन्हें हम बाहर निकाल देंगे, तो ऐड बैक कर देंगे, खर्चा किया हुआ है माइनस किए हुए हैं तो ऐड बैक कर देंगे, और 10,000 जो है वो हमारे आउटस्टैंडिंग है तो वो हम माइनस कर देंगे, तो हमारे पास नेट अमाउंट आ जाएगी ₹4 लाख। तो ये हमारे पास कैश एक्सपेंसेस आ गए और कैश सेल्स आ गई, और इनसे हम नेट निकाल देंगे अमाउंट हमारे पास ₹1,60,000 एज नेट इनकम। और एक्रूअल बेसिस पे अगर हम ये क्वेश्चन करें तो हमारे पास सेल्स कितनी है, 7,40,000 सेल्स हमारे पास इतनी ही है। देन फिर इसके बाद हम निकालेंगे हमारे पास एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस में हमारे पास 3,80,000, इसमें से क्योंकि ये एक्रूअल बेसिस है तो हम नेक्स्ट ईयर का आउटस्टैंडिंग भी ले लेंगे, इसमें आउटस्टैंडिंग भी इसी में ऐड हो जाएगा, तो ये 3,90,000 तो हमारे आउटस्टैंडिंग भी इसी में ऐड हो जाएंगे, क्योंकि एक्रूअल में हम आउटस्टैंडिंग भी साथ में ले लेते हैं, राइट। तो ये हमारे पास 3,90,000 बन गए, 3,90,000 बन गए हमारे पास। बताओ क्या ये मैंने क्वेश्चन सही किया है? आपको मुझे बताना होगा कि हमें ये क्वेश्चन कैसे करना है। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको मुझे कमेंट करना होगा कि वेदर आई एम डूइंग राइट और रॉन्ग। तो बच्चों यहाँ पे जो अमाउंट आएगी वो कैसे निकलेगी, मैं आपको सही करके बताती हूँ एक बार। हमारे पास एक सीधा फंडा है बच्चों, जो हमारे एक्सपेंसेस हैं, तो सबसे पहले हमारे जो एक्सपेंसेस हैं वो टोटल दे रखे हैं इन्होंने, ठीक है जी, टोटल बता रखे हैं हमें इन्होंने कि कितने हमारे टोटल एक्सपेंसेस हैं। इसमें से हमारे जो आउटस्टैंडिंग है वो ऐड हो जाएंगे, और जो नेक्स्ट ईयर के हैं वो माइनस हो जाएंगे, तो हमारे पास ये नेट अमाउंट आएगी एक्सपेंसेस की। ये वो एक्सपेंसेस हैं जिनमें आउटस्टैंडिंग ऐड है और नेक्स्ट ईयर के माइनस हो जाएंगे। एक्रूअल बेसिस में बेटा होता है कि हम अपने इस साल के जो भी खर्चे होंगे उनको रिकॉर्ड करेंगे, चाहे वो कैश में चाहे एक्रूअल में। तो जो नेक्स्ट ईयर के हैं वो तो सीधा ही माइनस हो गए, सीधा ही बाहर निकल गए, राइट। और जो इस साल के आउटस्टैंडिंग है वो ऐड बैक हो गए, इस साल के आउटस्टैंडिंग है वो तो आएंगे ही आएंगे, राइट। तो हमारे पास ये एक्सपेंसेस हैं, तो अगर हम सेल्स में से एक्सपेंसेस को माइनस करें तो हमारे पास 3,80,000 बच जाएंगे, जो कि हमारे पास नेट इनकम बच जाएगी। तो ये हमारे पास मेन डिफरेंस है बिटवीन दी एक कैश बेसिस एंड एक्रूअल बेसिस। एक्रूअल बेसिस में हम क्या करते हैं, आउटस्टैंडिंग ऐड कर लेते हैं, नेक्स्ट ईयर को माइनस कर देते हैं। इधर हमने सिर्फ कैश वाली आइटम्स निकालनी है, तो इसमें से हम पहले तो आउटस्टैंडिंग को ख़त्म करेंगे, ये तो हमने पे किए ही नहीं तो हम इनको माइनस कर देंगे, लेकिन ये तो हमने पे कर रखे हैं ना, तो इसको हम ऐड कर देंगे, ठीक है जी, डन। सो अगर फिर भी डाउट हो तो मुझे आप मैसेज कर सकते हो, आप मुझे कमेंट करके बताओ कि जैसे मैं पहले कर रही थी वो सही कर रही थी, क्या वो मेरा सिस्टम सही था। तो आपको मुझे कमेंट करके सही एक्यूरेट पोजीशन बतानी है। वैसे तो आपके पास सही आंसर बता ही है, बट स्टिल इट इज़ अ टाइम टू क्लिक ऑन यू,
ताजो आपकी ट्यूबलाइट जो है ना बंद, सो रहे हो, वो उठ जाओ आप। तो चलो जी, हम कल फिर से बात करेंगे, कल फिर से अपना नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। सी यू टुमारो। थैंक यू।